ओके, सो वेलकम अगेन टू डे 23 एंड आज का है सेशन वुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स. यू विल हैव टू नोट डाउन एंड राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट आई विल से. Okay, so your first, I will also put the questions in the chat box and I will read it aloud so that you can refer it. Yeah, you know, even when we are writing, if you need to refer to the questions, then you can refer in the chat box. Okay, so the first question, are you ready? Yes, ma'am. Okay, so the first question is, who in your life do you need to forgive or you need forgiveness from? Make a list. So you make two columns. In one column, like you need to forgive, and in the other column, you write need forgiveness from. So there are two column, and then make a separate list. Common people are there, then also it's not a problem. You write down the names in both the sides. हम ये तो मतलब ऐसे देखने जाओ तो बहुत सारे हैं, ऐसे देखने जाओ तो कोई नहीं है। बहुत सारे हैं तो जो है वो आप लिख लो. Even if it is small thing, ठीक है. What, see, about forgiveness, I also found out my forgiveness video, which audio which I will share, जो मैंने initially record किया था. Okay, so if we ask for forgiveness, so forgiveness आप जैसे अगर छोटे से छोटा चीज के लिए अगर हम बोलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ने कुछ बोला और हमें इमीडिएट गुस्सा आ गया, राइट? सो दैट हाँ, इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट वेयर यू शुड सीक फॉरगिवनेस. ओके, कभी वही ऐसा मैंने बोल होता रही है. थी, मतलब कितनी हाँ. बार ऐसे रिएक्शन आते हैं, तो ऐसे देखने जाओ तो कितने सारे लोग हैं। हम्म. इवन आई डोंट हैव माय पेरेंट्स विद मी राइट नाउ, दे हैव मूव्ड ऑन, बट स्टिल वो है। है. So I need राइट, to seek राइट. that forgiveness. यस, यस, यू हैव टू सीक. तो फैमिली मेंबर्स है, यू नो, स्टार्ट विद फैमिली मेंबर्स जो इमीडिएट सर्कल में है, देन स्टार्ट विद सभी रिलेटिव्स, के साथ झगड़ा फ्रेंड्स, किया मैम। कलीग्स. इसीलिए मैंने बोला कलीग्स. कि ऑफिस कलीग्स, वर्क कलीग्स, बहुत बहुत लोग होते हैं, मतलब बच्चों को छोटे भी। छोटे. हाँ, इफ वही तो मैंने बोला कि एक्चुअली देखने जाओ तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। And you know, the key to a harmonious relationship is when you start forgiving each and every person in your life every day. Even if, जैसे कि आज के दिन में भी अगर यू नो, इफ यू जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एवरी डे यू डिस्ट्रॉय वॉट एवर रिलेशनशिप यू हैड टिल येस्टरडे. कल हाँ, तक आपके साथ में, जैसे कि अगर मैं अपने बच्चों का बात करूं या फिर अपने पेरेंट्स का या हस्बैंड के बात करूं, तो कल तक जो भी रिलेशनशिप मेरा उनके साथ में था, विच वॉज नॉट वेरी हेल्दी, हारमोनियस, या फिर यू नो बेस्ड ऑन एंगर या कुछ ईगो इश्यूज या क्लैशेस, एनीथिंग एनीथिंग इट इज, you are removing, you are uncreating all those structures which you have formed in the relationships till yesterday, and you are, right, you know, moving forward with a new relationship. तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट यू वर इन योर प्रीवियस, you know, in your relationship till yesterday, you are destroying, you are uncreating each and everything. ओके। Okay, so that is where forgiveness comes in. Master बोलते हैं कि you should be forgiving each and every people in your life every day to have a harmonious relationship. So forgiveness is the key to harmonious relationship. बट मैम फिर भी कंटिन्यूटी नहीं रहती है ना। नहीं रहती है तो जब याद आता है तब आप कर लो. और अभी मेरे पास, मेरे को मतलब ऑडियो इफ यू मिल. क्रिएट अ रिलेशनशिप एवरी डे, तो वो जो होता है कि भाई आज इसने मेरा किया तो कल मैं उसका करूंगी, दैट इज गिव एंड टेक, इज व्हाट रिलेशनशिप इज अबाउट। But you are not asking तो something. एवरी You डे। are simply saying that you are forgiving for whatever things he has done to you, and you are also seeking his forgiveness. You may not go and ask him कि आप मुझे sorry बोलो, but you are seeking forgiveness for knowingly, unknowingly, wherever you have caused any hurt to him. You are doing your own part. Forgiveness का सिर्फ यही एक टेक्निक है. You are doing your own part. You are releasing any
any emotional disturbances or any emotional energies which exist between two persons. You are just clearing your own part, your own energies, because you don't want to stuck. Okay, एक चीज और बताओ, अगर कोई भी इमोशनल रिलीज इमोशनल एनर्जीज है, ओके, विच इज हेल्ड बिटवीन यू एंड वन पर्सन, तो क्या होगा, एक एथिकल एक एथिकल कॉर्ड जो होता है, इथेरिक कॉर्ड जो है, इनविजिबल इथेरिक कॉर्ड्स गेट्स कनेक्टेड विथ यू एंड दिस पर्सन. ओके, नाउ सपोज यू वांट टू like you want to raise your vibration or you want to move in a upward direction, ठीक है, you want to evolve your soul, but you are connected somewhere down with some person. Will you be able to move? जितना बड़ा रस्सी उतना ही मूव कर पाओगे. You will not be able to grow and evolve fast. Okay, only when you cut that particular cord, then only you will be able to move up in your journey. So बहुत बार ऐसा होता है, even though you do your meditations, even though you do everything, you do good work, generate a lot of good karma, and then you remove all your negative karmas, but still you feel stuck, you still feel that you don't move on, because there are lots of people who are connected to you who's pulling you down कि नहीं तू कहीं मत जा. Okay. They want you to stay in their own vibrations. Okay. Okay, so even though ये भी होता है ना कि हम मतलब जैसे कि फैमिली है, रिलेटिव्स है, वो तो नजदीक है तो याद है, फ्रेंड्स, सो कॉल्ड कलीग, ऐसे 50 तो मिल ही जाएंगे जिनको मेरे से कभी ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा. आई मे हैव फॉरगॉटन बट दे माइट नॉट हैव, so would not they a also problem. pull? You are clearing your own energies, whatever they are. They keep the let them be in their own anger, let them be, because that is where they are making their own soul suffer, and they are degrading their own soul. You have moved on. Okay. You have released the cord, you have moved on. And if I have forgotten कि भाई हाँ चलो ये हुआ था, so is that forgiveness or is there like कि I have forgotten and that's not forgiveness? Now there are two things. If you remember again, that means you have not forgotten. Okay. Now if you remember with forgiveness कि ठीक है ये हुआ था ना, but then you have moved on, you are not remembering that thing with the anger. That means you have forgiven, forgotten, and moved on. But if you stay there, if you get that energy, and if you think about that person in anger, in jealousy, in any kind of resentment, in any kind of betrayal, then you are still not forgiven. Then you will have to do more of forgiveness to release that. But मैम यदि किसी ने आपको उल्लू बनाया, ठीक है, एग्जाम्पल कि somebody has taken away your money, taken away credit, whatever, आपने forgive कर दिया, आप बोल रहे हो वैसे, बट वो बंदा फिर से आपकी लाइफ में आता है, again the same pattern, तो फिर आप No, उल्लू but बन गए then ना. you will have to be a smart player. Are you allowing that to do that to you again? Then you are becoming fool. You have become susceptible to become a fool, because then you will have to get into your intelligent mind. Forgiveness is something else कि चलो तुमने जो भी किया, it's done now, now it's over. अब तुम मेरे जिंदगी में आएगा तो मुझे उल्लू नहीं बना सकेगा. That's when your intelligent mind should work. Forgive कर दिया, में you cannot completely say कि ठीक है चल forgive कर दिया, अभी वापस भी we are back to square one और फिर से नहीं करोगे. नहीं नहीं, वो तो फिर बेवकूफी है ना. That is बेवकूफी ना, वो तो बेवकूफी है. So आप forgive करो, let them go and just release that cord. You don't have to keep it, and next time फिर उसके बाद you will have to prevent yourself from becoming that fool. There you have to play with your own intelligent mind. Right, because then they come and do the same thing again. आप एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो. If you are allowing that, then you feel you are you not are acting letting them violate you rather than that. Yeah, exactly. Then they you may are be becoming fool. supposedly close, but they continuously फिर वहीं पे याद है कि आपने forgive किया, they still remain in the same pattern. तो आपकी गलती, किसकी गलती, वो गलती वाला वो आ गलती तो जाता आप है. ही की है, क्योंकि आपने उसको अलाउ किया. आपने एक बार फॉरगिव कर दिया एक मिस्टेक के लिए, नाउ इट्स डन, इट्स गॉन. उसके बाद दूसरे बार वो आपके लाइफ में आके ये मेस्टअप क्रिएट नहीं कर सकता. नो, there are some people who just are there in your life. You cannot, possibly family members, you cannot just throw them out.
They are मत there. थ्रो They keep करो, on but doing then the don't same allow them repeat. to use you. That's what I would say. Don't allow them to use you. मतलब ये लाइन कहाँ पे ड्रॉ करें कि भाई नाउ नॉट दिस इज इनफ, हम्म ऐसा करके आप दैट करते यू हैं विल हैव, हाँ करते हैं, बिल्कुल तो करते हैं। तो अगेन दे फील कि आप अनफॉरगिविंग है, आप पकड़ के बैठे हैं इश्यू को। उसका दिस इज प्रॉब्लम टू है, काइंड ऑफ, आपने तो फॉरगिव कर दिया, उसका प्रॉब्लम है। आर यू डूइंग दिस विद एन एंगर? आर यू डूइंग दैट? कौन सी एनर्जी है दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई? यू नहीं आर वो डूइंग थक दिस विद, जाते हैं, मतलब एक्चुअली इतनी बार किया फिर थक गए कि अभी नहीं होता है, फिर यू से कि चलो भाई, यू गो योर वे आई गो माई वे। हम्म। ऐसा नहीं है कि व्यंजन से कर रहे हैं, बट वो होता है, बट इट इज नॉट देम, मतलब उनके साथ तो आप छोड़ देते हो कि भाई तू अपने रास्ते जा, अदर पीपल विल कम एंड टेल यू कि यार तू अनफॉरगिविंग है। हम्म वहां पे इश्यू आता है मुझे। वो उनका जजमेंट है ना, हाँ, पर वो वो उनका जजमेंट है, आपकी लेट देम लाइफ बे में विथ तो वो यू। रहता है ना मैडम। आप फिर से फॉरगिव कर दो कि वो उसका जजमेंट है, आप उनको भी फॉरगिव करो जो आके आपको बोल रहे हैं कि मे लाइट बी विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि उसको दिखाई दे कि एक्चुअली सच क्या है। जो आके आज आपको बोल रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा ना तो वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। हम्म। Okay, so let people's judgment be with themselves. You are not getting, overruled by their own judgment, because you have an intelligent mind, and you are you have a capable mind which thinks positively and which thinks ki what is good. So let them be with their own judgment. So forgiving is not forgetting and going back to square one, it is moving on. Yes, it is moving on. Hmm. Got it. इनफैक्ट बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि इफ यू वांट टू जस्ट रिलीज दैट पर्सन एंड लेट देम गो इनटू फ्रॉम योर लाइफ, then after doing forgiveness, just visualize कि you are moving in the opposite direction, both of you. He is moving in his own direction, you are moving in your own direction, and simply it has Yeah, simply he has become invisible from your side. got it. Okay, so forgiveness करने के बाद में if you do that visualization, so once you do forgiveness with a powerful visualization that he is going his way, you are going your way, and suddenly he disappeared from your vision, then it's completely gone. It's after some time you will also experience that happening physically if you don't want him to stay in your life. There are relatives, there are close relatives, who be with you, and then suddenly they cut ties. Maybe you move to a different city, or they move to a different city, and simply you cut ties. So it happens, it happens. Okay, so if there are friends or family member who actually you want them to be with you, then after forgiveness, simply visualize that you are embracing that person, that person is also embracing you without any judgment, with a feeling of love. So love aspect you are increasing there. So just imagine that in the pink energy, both of these two persons are there inside the pink energy, and they are just embracing with love. Okay, so now you are just flipping the anger energy into love, and you want them to stay with you. And then there are other persons with whom you are flipping the anger energy to compassion and mercy, and you are forgiving and just allowing them to go out of your life. Okay, got it. Okay, so you have noted down the list. So you need the names or just the You wrote group down for your own self. names? Yeah. Names. Who in your life do you need to forgive, and or you need forgiveness from? Please make a list. So just two columns, and then write down the names of people. मोस्ट मैम दोनों साइड सेम ही है। हाँ, वो रह सकते हैं. That can be. हाँ, मैं अपने बच्चों को अगर कभी गुस्से पे थप्पड़ भी मार देती हूँ ना, देन आई गो फॉर फॉरगिवनेस कि प्लीज फॉरगिव मी फॉर सच एन एक्ट, या कभी जोर से चिल्ला भी देती हूँ, देन ऑल्सो आई डू दैट फॉरगिवनेस. It is not because I want to separate them from from my energy, or it's because I want that emotional disturbance के जो energy है, जो anger की energy है, I just want that to erase and remove.
तो देयर आर पीपल ना इन माय लाइफ, जैसे वर्क कलीग्स है, उनका छूट गया, नाउ आई हैव ड्रॉप, बट इफ somebody asks कि ये बंदा कैसा है, तो आई विल फील कि नहीं बहुत अच्छा बंदा नहीं, यू डू नॉट वर्क विद दैट पर्सन. It's not anger, but it is just my judgment. कॉशन. So is this like रिलेशनशिप अभी आते हैं तो मैं ठीक है चाय पानी उनके साथ कर लेती हूँ, घूम भी लेती हूँ, बट आई विल नॉट वर्क विद दोस पीपल अगेन. सो दैट इज फॉरगिवनेस, यू हैव फॉरगिवन, यू हैव मूव्ड ऑन. है ना, वो मूव ऑन हाँ, हो गए ना, और बिकॉज अपना दे इंटेलिजेंस से यू आर दे लाइक ऑल्सो मेरे दो तीन हम्म बॉसेस है वांट टू वर्क विद मी, आई डोंट वांट टू वर्क विद देम नाउ. सो आई हम्म डू नॉट, मतलब मैं बात कर लेती हूँ, बट वो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं हो पाएगा काम. So again, it's not as if I'm stuck with my that, but नो. that experience was so bad that I do not feel connecting with them again. सो यू आर यूजिंग योर ओन इंटेलिजेंट माइंड एंड यू आर शोइंग कि नहीं, हाँ, अब मेरे को इनके साथ that काम नहीं करा, सो दैट is दैट मीन्स not यू हैव lack of मूव्ड ऑन. forgiveness, right? हाँ. हाँ. यस, इट हाँ, इज है ना, so फॉरगिवनेस. वो डिफरेंस कि भाई यार यू फील कि नहीं, और कोई मुझे पूछता है तो भी मैं बोलती हूँ कि यार ये बंदे का के साथ मैं तो काम नहीं करूंगी. हम्म. तो वो मेरा ओपिनियन है. सो हम्म. वहां पे फॉरगिवनेस की बात नहीं है ना, दिस इज नहीं जस्ट कि नहीं. भाई मूव ऑन, की नहीं ये बंदा तो नहीं चाहिए, ये बंदे का ये हम्म इश्यू है, ये बंदे का ये इश्यू है. हम्म रिलेशनशिप है, चाय पानी का रिलेशनशिप है, उससे बियॉन्ड नहीं है हम्म. मेरी साइड से. उनकी साइड से पता नहीं, उनको जब हम्म. जरूरत होती है, उनको जरूरत हो तो मेरे से को फोन कर लेते हैं, मैं कर देती हूँ, पर मैं कभी नहीं फोन करती क्योंकि मुझे नहीं हम्म. कनेक्ट करना है दैट एग्जैक्टली. वे. तो दैट इज फॉरगिवनेस का इश्यू दैट नहीं है इज ना फॉर, वहाँ पे. नहीं नहीं, बिल्कुल भी हाँ, ओके. फिर तो मैम बहुत कम लोग हो जाते हैं, मैं ऐसा पकड़ के नहीं. बैठती नहीं हूँ. स्पेशली जो मेरे वो नहीं होते हैं ना, उनको मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मैं तो छोड़ एग्जैक्टली देती मतलब हूँ. देर देर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत बहुत ज्यादा चीज को होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज दे फील कि लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, वो लोग हाँ, बहुत ज्यादा और मेरे इंपॉर्टेंट से है. ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को वो सब का फर्क नहीं पड़ता है. सो देर आर पीपल एट बोथ दी एंड, मतलब. हाँ, मेरे को मैंने सर मैन आई एम नॉट रियली क्लोज टू पीपल, मेरे को ऐसा नहीं होता है. ओनली दोज पीपल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते हैं कुछ लोगों से. सीरियसली. क्या मैं बहुत कम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, तो मेरे को ऐसा मतलब वो नहीं होता है. वो फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, दोस्तों कुछ दोस्त बहुत क्लोज होते हैं क्लोज उनसे. होते हैं. ट्रू. और यदि उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई तो आई जस्ट गेट अप एंड मूव कि ठीक है, हम्म. नहीं फिट हुआ, मतलब आई डोंट होल्ड अ काइंड ऑफ ग्रज, पर फिर मैं दैट इज उसके गुड साथ फॉर यू, करती दैट नहीं इज हूँ. गुड फॉर यू, बिकॉज बहुत लोग होते हैं who नेवर नेवर कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. हाँ, मेरे को ऐसा नहीं, आई बहुत आई लोग वुड हैव ऐसे होते हैं. फॉरगॉटन आल्सो कि उसके साथ क्या पंगा हुआ था. कुछ लोग, हाँ. बहुत सारे लोग ने पैसे ले लिए मेरे, आई फॉरगेट, तो आके अभी 5 साल बाद एक लड़की है कि मैडम 1,000 रुपए मैंने आपसे लिए थे, भूल भी गई, मतलब वो पता भी नहीं है, ऐसा भी होता है. सो हम्म आई कंप्लीटली फॉरगेट ओनली कि अच्छा ये पंगा हुआ था, इसके साथ ये हुआ था. हम्म. So that is what I'm asking कि has this been forgiven कि I forget, so I genuinely forget. तो वो फॉरगिवनेस के नहीं होता तो नहीं होता ना, ऐसा मैं एज्यूम ऑफ कर कोर्स. लेती हूँ. फिर तो मैं बहुत कम लिस्ट है, बहुत लंबा नहीं. बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, शायद मैंने किसी को डांटा वाटा हो और उनकी लाइफ में तकलीफ हुई हो मेरी वजह से, तो भी मैं भूल गई हूँ. अच्छा, इसीलिए जब हम लोग फॉरगिवनेस करते, वी ऑलवेज से वन थिंग, इट इज नोइंगली और अननोइंगली. हाँ, आई नो. अननोइंगली क्या होता है, या तो मुझे लगता है कि ये उसके अच्छे के लिए है लेकिन उसको बहुत बुरा लग गया हो, वो भी हाँ, हो सकता है. हो सकता है. तो फॉरगॉटन और रिमेम्बर्ड भी ऐड करना पड़ेगा मुझे. बाकी तो मेरा लिस्ट बहुत छोटा है, फिर हो गया. Okay, great. Okay, so what situations in your life, past or present, you need to forgive or need forgiveness from? निकल जैसे कौन सा ऐसा situations है मैम आपकी इंग्लिश लाइफ में में? बोले, व्हाट सिचुएशंस. इन योर लाइफ, मैंने चैट बॉक्स में लिखा, व्हाट सिचुएशंस इन योर लाइफ, पास्ट और प्रेजेंट, यू नीड टू फॉरगिव और यू नीड फॉरगिवनेस फ्रॉम.
ये भी एक्चुअली एक ही लाइन है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन के मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, कोई फुलफिल नहीं कर पाता है तो तकलीफ होती है, या तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन है वो मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। So it can दैट्स be two ओनली different situations as well. It can be similar situations as मतलब यही कि भाई एक्सपेक्टेशन है, नहीं फुलफिल कर पा रहा, तभी झगड़ा होता है मैम, अदरवाइज क्यों होगा? well. Hmm. इफ यू डिफाइन इट यही है, सो आई एम ट्राइंग टू टोन डाउन माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन, हम्म। फिर कोई सो पंगा नहीं। इवन इवन इफ इट इज एक्सपेक्टेशन, सो आप उसको भी ब्रेक कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस फॉर व्हाट, इधर इट इज रिलेटेड टू वर्क और रिलेटेड टू परफॉर्मेंस और रिलेटेड टू एनीथिंग which is related to deliverable or money. कंसिडरेशन मेरा हमेशा पंगा उसी पे होता है कि यार मुझे कंसिडर करो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। मतलब सो दैट मीन्स यू वांट टू हैव अ कंट्रोल, वहां पे कंट्रोल आ रहा है, कंसिडरेशन मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स यू ऑलवेज थिंक दैट आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, यू वांट टू कंट्रोल ईच एंड एवरी सिचुएशंस इन योर लाइफ, इज दैट इट? कंट्रोल तो नहीं, पता नहीं इफ यू पुट इट दैट वे, बट ऑब्वियसली यदि आउटकम है तो यू वुड वांट कि भाई मैं ये मेहनत कर रही हूँ तो ये कंसिडर होना चाहिए कि इतनी मेहनत हुई। हाँ, लेकिन देयर कैन बी अदर थिंग्स विच इज इवन बेटर, देयर कैन बी other aspect which is better than your own aspect or your own point of views. तो मुझे समझाओ ना। हाँ, सो यू हैव टू बी देयर कि वहां पे आपको ओपननेस दिखाना है, यू डोंट हैव टू बी इन अ कंट्रोलिंग फैक्टर कि यू हैव टू बी मोर ओपन टू रिसीव थिंग्स फ्रॉम अदर्स. द मेजर प्रॉब्लम व्हाई we don't receive money is because we block our own receiving, and this is your blockage, that you are blocking other people's point of views or judgments or what opinions, because you feel that somewhere people should hear you because of maybe your years of experience, or maybe your knowledge or whatever, or maybe your communication skills. So you will have to find out कि क्या चीज की वजह से you feel that you are superior and you want to control each and every situations. फील सुपीरियर, अब मैं सामने वाले का सुनती हूँ पर वो बिल्कुल ही नेगेट करे कि भाई नहीं, तो फिर आई फील कि दैट इज मी बीइंग इंसल्टेड बाय दैट। आई सो कहीं इट ना इज गिव कहीं एंड वो टेक, पर वो गिव एंड टेक कम का फील नहीं आता है, तो मे नहीं, बी कहीं ना कहीं वो इसी कम्युनिकेशन, मे बी द अदर पर्सन व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज नॉट ब्रेकडाउन मैचिंग होता है। समवेयर, सो वो हाँ, कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट कर रहे हैं. सो तो देर वो आर जो सिचुएशन, हम्म. सॉरी मैम तो बोलो। हाँ, सो वो एक एक सिचुएशन वो आया कि द कम्युनिकेशन गैप और मे बी द अंडरस्टैंडिंग गैप बिटवीन यू एंड योर subordinate or your bosses, which is creating a situation, one kind of situation into your list. Okay, so एक communication gap आया. Now just think, this is one aspect where you are keeping your office environment in place. Now think about the same thing with your friends or relatives or your family members. Is there a communication, similar kind of communication gap, similar kind of pattern that you experience, that people are not able to understand you or you are not able to understand them because you are not able to communicate properly कि आपको क्या चाहिए या फिर उनको so is it the same situation or there is something else? तो मतलब वही ना मैम, ये एक्सपेक्टेशन है, कम्युनिकेशन भी है, एक्सपेक्टेशन है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव कि भाई मैं बोल रही हूँ कि मैं हूँ तो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज व्हाट आई एम सेइंग। Why not? Because you want me तो yourself to feel कम्युनिकेशन मतलब important. ऐसा So, नहीं है कि मैं बोली नहीं हूँ, पर वो लोग hmm, वैल्यू नहीं करेंगे। hmm. तो वो एक्सपेक्टेशन का हुआ कम्युनिकेशन, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं चुप रहूं, मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं चुप नहीं रहती हूँ, मैं Hmm, मानती हूँ hmm, hmm, इट hmm. विल बी, बट कम्युनिकेशन, if silence was needed for communication then perhaps maybe, but No, it is not that. अगर silence communication का king है, then there are a lot of talks which can also happen without actually uttering words. आप non-verbal communication में भी बहुत सारी चीज जो है वो लोगों पे convey कर सकते हो,
है ना? सो वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन हाँ एग्जैक्टली, वर्ड्स, मतलब राइट? कम्युनिकेट तो किया मेरा कम्युनिकेट, मुझे नहीं लगता कि मेरा कम्युनिकेशन का इशू है, लेकिन सो थिंक सामने अबाउट वाले का समथिंग एल्स कि क्या नेगोशिएशन है। का इशू हो सकता है। आई मे बी बैड एट नेगोशिएटिंग, ओके, ओके, वो हो सो सकता है। वो आप लिख लो, मतलब यू नो। Negotiating negotiating what I want, that could be a problem. ओके, Okay. And I actually walk away from situations which irritate me. हाँ, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ना, सो यू डोंट वांट टू फेस थिंग्स। Yeah, I actually walk away. So yeah, question पता मेरे face running away maybe I don't know. Yeah. वो एक इश्यू है। मतलब मेरे को पंगा नहीं लेना होता है, मेरे को कुछ एफर्ट के बाद आई जस्ट क्लोज कि भाई ओके, मैंने स्ट्रेच किया, तुमने स्ट्रेच किया, हमने एयर आउट किया, फिर भी यू वांट दैट, तो रहने दो। एक एक के मिनट, मैम सॉरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। અહીંયા થી आई जाओ ना, खुल्लू જ છે। मैं अकेली हूँ मैम, तो कोई बात। ठीक है। और क्या हो सकता है? डन। हम्म, और सिचुएशन सोचना कुछ है सूझ थोड़ा। नहीं रही है। मतलब और ओके, सूझ, ओके। मेरा एंगर का इश्यू है, वुड दैट बी अ सेपरेट थिंग? आई गेट हाँ, इट एंग्री वुड बी अ रियली। सेपरेट, हाँ, इट वुड बी अ सेपरेट। तो वो है मेरा। ओके, सो व्हाट चाइल्डहुड मेमोरीज कैन यू रिकॉल यू नीड टू फॉरगिव और नीड फॉरगिवनेस फ्रॉम? आपके जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। Let me go. This is a third question. यस, थर्ड क्वेश्चन। Anna, hai cả đôi biết biết có cha có có sát hạt nấu બસ હજી એક બે ઓલા છે એમાં કઈ એવું that's right. પછી આવતા અઠવાડિયે. 10 કપડા લઈ જાઓ. Yes. સંજોગોનું બધા મુશ્કેલ વચમાં રહો. શુક્રવારે આવજો, હું હોઈશ। શનિવારે મારું પાછું લેક્ચર જ હશે આ time. અહીંયા જ રહેવાનું કે બાકી બંધ કરીને જજો। चाइल्डहुड मेमोरीज तो मैम ऐसा है, कोई कुछ याद नहीं है। हम्म। चाइल्डहुड मेमोरीज मैंने बोला ना, आई डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग मेमोरी, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं रहता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ। ओके, चाइल्डहुड मेमोरी। But I really don't remember बहुत ज्यादा। Okay. So think about the incidents that happened maybe in your school or college times, आपके childhood में, या फिर certain instance which happened, where you felt bad,
you know, because of somebody else's behavior, your friends, or even, parents must have said something. अगर इस तरह का कुछ भी memory, if you are, if it is coming to you. अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है, then I would suggest कि this is one question which you should actually write down in the paper and sleep over it. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत, there are certain things which keep us haunting and we don't हाँ, remember that, right? 3-4 चीजें याद आई मैम, हम्म। मतलब हाँ, चाइल्डहुड मतलब मैम 10th 11th 12th तक की उसका। Till your age of 18 years, that is your child. ओके। काफी 10 बार 10 जितनी हो गई। बहुत है। Okay. What traumas are you holding on to that was passed down to you? मतलब पास्ड ऑन टू मी मतलब Passed on to you, matlab from it came either from your, nani, dadi, or your parents. कुछ ऐसा ट्रॉमा जो है, वन ऑफ द ट्रॉमास कैन बी अबाउट लाइक मनी, हाँ, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या फिर आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बोल देते हैं ये दिस इज नॉट द थिंग दैट वी कैन अफोर्ड, तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रॉमा। Okay, so this is about money. Now it can be anything about, say, for example, your relatives. There can be traumas about your schooling or education. Okay, there can be other traumas as well. So जो भी चीज आपके माइंड में आ रहे हैं, that were passed on to you from your either parents or relatives or anyone. मेरा एक ऐसा ट्रॉमा था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज टोल्ड कि ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। आई यूज टू लाफ अ लॉट, आई यूज टू एंजॉय, बहुत ज्यादा ऐसा था। सो हर बार, वेन एवर आई यूज टू लाफ और वेन एवर आई यूज टू फील दैट हैप्पीनेस, तो हर बार मुझे टोक दिया जाता था कि ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, तुम लड़की हो, ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। सो नाउ आई रिमेम्बर फ्रॉम माई एंटायर चाइल्डहुड, आई डोंट रिमेम्बर दैट आई वॉज हैप्पी इन माई चाइल्डहुड। हमेशा मेरे को ऐसा ही आता था कि नहीं, आई हैव नेवर लाफ्ड, आई हैव नेवर बीन दैट हैप्पी। तो ये ट्रॉमा एक मेरे अंदर में था। ओके। ओके, सो कुछ भी आपके लिए जो भी चीज है, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज टोल्ड कि नहीं ज्यादा हंसना चाहिए। सो मेरा चाइल्डहुड मेरे को अभी कभी याद ही नहीं आता है कि मैं कभी खुश भी थी अपने चाइल्डहुड में।
I always feel that sad part in my childhood. Okay, done, ma'am. Okay. Now, the fifth question is, how have you been oppressed? Where do you do this to yourself? Oppression is defined as prolonged, cruel, or unjust treatments, right? Mm. So I do it to myself or others, like, Anything. If others has done to you, or you have done to your own self. It can be being in a state of, unjust treatment, or somebody's under control, or any kind of mental pressure or distress, anything. Mm. So validation, seeking validation or seeking, growth, और वो नहीं मिले तो वो ऑपरेशन होता है. नहीं, ऑपरेशन वो होता है जैसे कि आपने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, फिर उसके बाद कोई बोला कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, दिस इज व्हाट शुड हैपन. ओके. मैम वो जॉब में या उसमें वही होता है ना, यू फील जॉब जैसे में भी हो सकता है आपके, जैसे कि मेरे स्कूल टाइम पे ऐसा हुआ था कि वी वेर इनटू अ सेम ग्रुप और हमें ग्रुप का प्रोजेक्ट बनाना था, राइट. सो देयर वाज वन पर्सन हु वाज क्वाइट डोमिनेटिंग, और हमेशा ऐसा कुछ भी आप पॉइंट ऑफ व्यू बोलो तो ऐसा बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा आई वेंट टू बैक कि मैं अपने आइडियाज, फिर उसके बाद कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट में मैं अपने आइडियाज बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं मैं मेरा तो बात नहीं सुना जाएगा, आई एम बीइंग oppressed, under the control. So कोई और ही करेगा. Stuff like that. ओके. Okay. So what is it for लड़कियों you? को तो बहुत ज्यादा डोमिनेट मत करो. वो वाली रिएक्शंस आल्सो कम अंडर दिस, वो उसमें आता है. हाँ, आता है ना. हम्म. आता है ना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ बोलने भी जा रहे हो तो भी आधा सुनने के बाद ही कोई कट देता है, नहीं 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 ये नहीं, मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या बोलने चाह रही हो, सो मुझे नहीं सुनना. Stuff like that. अभी तो 3 सूझ रहे हैं मैडम. फिर. कोई बात नहीं, आप 3 का लिखो. हम्म. Okay, then I'll also give these questions in the chat, and then you can also think कि अगर बाद में कभी आपको ये एक्सरसाइज फिर से दोहराना हो ना. नहीं मैम, मैं तो सॉफ्ट कॉपी में ही लिख रही हूँ मैं, इसीलिए वो ओके, आपका ना तो बाद इसे में अच्छा रहता है, तो अभी मैंने बुक पे से सॉफ्ट कॉपी पे आ गई मैं. ओके ओके. डन, ये हो गया ना. हम्म. ओके. So now it is about suppression. How have you been suppressed? Where do you do this to yourself, or somebody else has done to you? Suppression is deliberately trying to forget something which you don't want to forget, not thinking about something which is painful or unwanted thoughts. That is suppression. You have suppressed things.
तुम मोटी हो तो ये नहीं कर सकती, सो दैट बिकम्स सप्रेशन, राइट? यस यस यस, देन यू मेक इट ट्रू कि नहीं मैं ऐसी ही हूँ, यू नो। हम्म। तो दिस इज रेफरेंस, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, बहुत हाथ खुला मत रखो, इज दैट सपरेशन? नो, दैट इज ऑपरेशन। दैट इज ऑपरेशन। यस, सो एवरी टाइम यू क्योंकि काइंड इट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रेशर। हाँ, यू एक्चुअली फील कि भाई हाँ यार, यू आर टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम पीपल। अच्छा, आई यस, थॉट बिकॉज यू हैव टू सप्रेस योर, लाइक यू नो कि मेरे को ये करना है, तो यू एक्चुअली वो सप्रेस दोस फीलिंग थिंग्स। सप्रेशन में आएगा, दैट फीलिंग, लेकिन हाँ। वो जो पॉइंट है दैट विल गो इनटू ऑपरेशन, यू नो। ओके। बिकॉज इट इज अ मेंटल प्रेशर दैट नाउ यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर कि मेरे पास कितना है वही आप काउंट करते रहते हो, और कहाँ पे स्पेंड करना है वही आप देखते रहते हो, नो। सो दैट बिकम्स अ ऑपरेशन। ओके। ओके। सो इसमें मैं लिखूं यही कि भाई, um, द फीलिंग, यू नो, द फीलिंग दैट यू हैव इनफ, वो सप्रेशन में आ जाएगा। feeling that I will not have enough. नॉट ऐसा। हैव इनफ, यस। So there is also a concept of repressed. Now, what is repressed is the action that follows the operation and then suppression is called the repression. तो अभी action क्या हो रहा है, जैसे कि now first आपका वो एक trauma हुआ, वो mental pressure हुआ आप में कि you're not able, do not have to spend. Okay, then हम्म। that feeling which becomes suppressed कि अभी मैं नहीं कर सकती, and what are the actions that you are taking? Okay, so actions में क्या आएगा कि now if you, even if you have the money, you will not buy things, हाँ। you will stop yourself. So that is into the third category, which is called repression, that you are now taking actions based on your suppressed and oppressed feelings. ओके, वो बाद में आएगा। तो hmm. अभी फीलिंग अभी दैट आई सप्रेशन डोंट हैव लिखने के इनफ। बाद देन ऑल्सो यू राइट द रिप्रेशंस कि अभी एक्शंस क्या क्या है, व्हाट आर द एक्शंस दैट you know you have taken to actually make your operations and suppression feelings true. दूसरा पूछना, लाइक यू आर टोल्ड टू सीक वैलिडेशन, कि यार सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुमने जो भी किया क्या फायदा? व्हेन विल दैट कम अंडर, कि भाई, You are told to seek validation. हाँ मतलब सब, यानी इफ पीपल आर नॉट हैप्पी, इफ योर फैमिली इज नॉट हैप्पी, तो आपने जो भी किया क्या फायदा? सो अगेन वो ऑपरेशन में जाएगा ना, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस की एनर्जी है। तो सीकिंग वैलिडेशन। यस, देन यू हैव सप्रेस दैट यू हैव स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। नहीं मतलब आप एक्शन से बंद हो जाओगे, यू नो यू आर करेक्ट, बट यू डू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर योर सो वो थॉट्स, सो सप्रेस्ड में आ गया, वो वो सप्रेस्ड में सप्रेस आ में गया। आए। यस, एंड रिप्रेस्ड में क्या आएगा, रिप्रेस्ड में जो एक्शंस आपने जो लिया है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल कि कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जहां पे आपने वो एक्शन लिया है टू मेक इट ट्रू, कि आपने एक्चुअली में नहीं बोला जहां पे बोलना चाहिए था, हम्म। तो वो रिप्रेस्ड में आ जाएगा। डोंट टेक स्टैंड और डोंट टेक फाइट, वो सप्रेस में नहीं है, वो सप्रेस और अप्रेस की लाइन बहुत थिन है मैम। हाँ, एक्चुअली सप्रेस में ऑल द फीलिंग्स जो है ना, फीलिंग्स है ना, वो आती है। Okay, so feeling that you can't take a stand will be suppressed, and यस not taking a stand will be repressed. यस, मतलब नेगोशिएशन में ना पुशबैक बहुत जल्दी ले लेते हैं, वो रिप्रेस में आएगा। हम्म,
और वहां पे भी गुस्सा आता है फिर मेरे को, तो नेगोशिएशंस में या तो स्टेप बैक करती हूँ या तो गुस्सा करती हूँ। आई गेस दैट इज अ प्रॉब्लम। हम्म। ओके। सप्रेस में चार चीजें हुई। रिप्रेस में, like you feel guilty when you spend money, that is repressed or that is नहीं, suppressed? सप्रेस्ड। Okay. तो रिप्रेस में क्या क्या, यू डोंट स्पेंड? You don't spend, or there has been experiences where you have actually stopped yourself from spending. हम्म। Okay. ये सब में तीन चार हो रहे हैं मैम। कोई बात नहीं। So the magic is that this is just a starting of the opening up, right? So once you do it again, फिर से आप अगर आप ये करोगे, then you will get at least 8 9। फिर से Got it. करोगे, then you will become more aware, you will become conscious in each and everything. Where do you find you are blaming others for your experiences? बहुत सारे इंस्टेंसेस आएगा इसमें। If you don't take care, तो almost every time. Yes. Then you have to get Because hold of it is easy ना, very easy. वेरी इजी ना ऐसा करना। ये हाँ, तीन you इधर can. भी है, ये तीन इधर भी है। हाँ. Basically, when you in principle want to do something which you feel this is good, and you have to act against it. Difficult से है ये वाला चीज, क्योंकि यदि पता होता है तो नहीं करते हैं। So this is essentially a blind spot. Maybe you are doing it unknowingly, ये भी हो सकता हाँ, है। वही unknowingly, Maybe because you are doing unknowingly. हाँ मतलब कोशिश तो करते हैं कि ना करे, अपना भी देखे, बैलेंस करे, कोशिश तो ये रहती है, पर ये गलत होंगे ही होंगे इसमें। ये आईटी करना, लिखना, लिस्ट बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आई एम श्योर कि बहुत बार ऐसा होता होगा, यू फील कि मैं तो सही थी, एंड नहीं होते हो। So in those situations, can you now take 100% responsibility? That is the catch. डिफिकल्ट है क्योंकि मेरी गलती कहाँ है, उसकी है ना। हाँ, वही है ना फाइट कि में हमें। वही होता है कि उसने इतना नहीं किया, गलत तो नहीं है ना। सो यू कीप ऑन सीकिंग वैलिडेशन, जस्टिफाइंग योर स्टैंड। तो वो मैंने बंद कर दिया है अभी, काफी 3 4 साल से मैंने जस्टिफिकेशन देना ही बंद कर दिया है कि भाई मैंने तो पूरी अपनी ओर से कोशिश की, हमारा नहीं जमा। आई एम नॉट सेइंग कि तेरी गलती मेरी गलती, पर साथ में नहीं जमा। यू गो माई वे, आई गो योर वे। Forgive and forget. हाँ, बट देन द प्रॉब्लम इज दैट पीपल फील दैट आई एम बीइंग एरोगेंट उसमें। देखो वही चीज है ना, व्हाट लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो चीज उनका जजमेंट है, यू डोंट हैव टू टेक इट ऑन टू यू। आई डू ओके, नॉट, बट सो एवरी टाइम अगर आपको लगते ना कि वो लोग कुछ बोल रहे हैं ना, तो आप अपने माइंड में सिर्फ यही करो कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू कट दैट सिचुएशन। सो बट एवरी ऐसा तो टाइम नहीं यू है ना मैम, हियर। फीडबैक भी तो लेना पड़ता है ना। हाँ, आप वो लो। तो ज्यादा एरोगेंट है कि आप भाई आप वो करो ही नहीं, कि भाई हाँ आप ये तो तुमने किया, वो मुझे क्या फर्क पड़ता है, काइंड ऑफ। तो हर नहीं, वक्त अब आप ये स्टैंड फीडबैक लेना लो, वो भी बट अच्छी देन नहीं डोंट है। टेक एनर्जेटिकली दोज थिंग्स। ओके, फीडबैक लो। ओके, बट इट्स जस्ट दैट कि ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, यू आर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। So, I actually genuinely feel that if I do not take other person's point of view, then I genuinely become very arrogant. Anybody, not me,
anybody who doesn't take other people's point of view and give them नहीं, that what I'm space. saying, you take the point of view, you improve yourself, okay? If you have to, if you are already improved version of you, if you think that I am okay, it's their point of view, then don't take that energetically, you know, simply move Why on do you with it, draw keep that it on. line? मतलब ये blame वाला, वही तो मैंने बोला कि this ना made me think on these lines only कि मतलब वो blame है कि आप बोल रहे हो कि ये तेरा, ये मेरा गलती, ये तेरा गलती. This is basically that, right? So then you feel कि मेरा तो नहीं था, पर आपने दूसरे का सुना तो वो फालतू ही अपने पे डाल रहा है, खुद पे कुछ देख ही नहीं रहा है. तो आपको नहीं लगता है कि भाई गलती है? एक झगड़ा ही हुआ, चलो, तो आपने एक बार जाने दिया, 2 बार जाने दिया, 3 बार जाने दिया, but that person keeps on doing the same thing and finally you take and say कि, oh, I've had enough shit, now I don't want to. Now they will blame you for taking an unnecessarily strong stand and moving off, not listening to people, but you know that you have given them enough space. But and then you blame them for not really appreciating or valuing what your point of view, so you have stopped taking shit. So अभी यहाँ पे you are tending to put the blame on them, they will put the blame on you. तो यहाँ पे have I put blame on them for my experience? Because you are doing that, no? But Even मैंने if उनको it is बोला unknowingly, it is being done. नहीं, but knowingly उन्होंने किया ही है ऐसा. कोई आके हाँ, so आपको जेन्युइनली थप्पड़ मारा हुआ है आपको फिजिकली, और फिर भी and then you say, oh, this is enough and I don't want to take this shit from you. तो आपने थप्पड़ मारा तो that was a line that was crossed and I will not take shit from you is a stand you take. And you are telling them कि आपने ये किया इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ. आप तो ब्लेम है कि वो मतलब you are taking a stand about yourself है. you are taking a stand because you have an intelligent mind, you are taking a stand कि हाँ, ठीक तो है फिर ये अभी हो ब्लेम गया. कैसे हुआ? हाँ, तो फिर वो ब्लेमिंग हुआ Because कि नहीं हुआ? if somebody else is saying कि आप वहां पे arrogant हो रहे हो, that means you are taking that on you. But यहाँ पे आपको लेना नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ. You don't have to take it. वो हाँ, तो एनर्जी ये को ही बट नहीं लेना है, वो एनर्जी को ही नहीं लेना हाँ, है. तो आई टेक, वही तो मैं कह रही हूँ कि आई वेरी कॉन्शियसली एंश्योर कि आई डू नॉट यू नो आई लेट द पर्सन हैव स्पेस, लेट द पर्सन हैव स्पेस. उसके बाद मैं फुल स्टॉप कर दूं कि नहीं, ये अभी आपका एक्शंस मुझसे वाइब नहीं हो रहे हैं. तो एम आई ब्लेमिंग देम और इट इज जस्ट कि भाई चलो आई हैव स्टॉप टेकिंग शिट एंड हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ या हमारा जो पार्टनरशिप था वो आगे नहीं बढ़ा या So व्हाटएवर. in this, you are not taking the blame. You are simply acting intelligent enough to say कि अभी you have drawn your own line. Okay, you have had enough. अभी आप उसको forgive कर दिए, forget कर दिए. You have moved on. Okay, and now नॉट ऑलवेज you एबल टू have drawn. फॉरगिव कि Yes. भाई उसके साथ मतलब कि ये But तूने if you गलत कर keep लिया on मेरे साथ. constantly complaining, then the blame comes तो because you आई know of नेवर that कंप्लेन, experience. पर मेरे So दिल the में माफ so तो नहीं so किया है. वो वाला जो इंसिडेंट है वो वाला जो इंसिडेंट है दैट इज आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ओके, वो अभी यहाँ पे फिट नहीं होगा. थिंक ऑफ समथिंग एल्स जहाँ पे you are in that mode of blaming others for your experiences and then you have not moved on from there. वहां पे ही आप stuck हो, कोई ऐसा सिचुएशन. जैसे आई ऐसा. टेल यू एक हाँ, एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. सो माय ब्रदर ऑलवेज वांटेड टू डू कंप्यूटर इंजीनियरिंग. ठीक है, अभी व्हेन ही वेंट टू द कॉलेज समहाउ ही वाज प्लेस्ड इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड देन पेरेंट्स बोले कि अभी इसमें एडमिशन हो गया है तो तुम इसी में कर लो. ओके, सो टिल टुडे ही इज लाइक ही इज ब्लेमिंग देम दैट बिकॉज ऑफ यू आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग. नहीं ओके, ऐसा कुछ तो नहीं सो हुआ है ऐसा कोई लकीली. सिचुएशन के बारे में आप सोचो बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग दैट यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ये सिचुएशन इसमें फिट नहीं होता है. सो अगर कोई ऐसा है कि यू आर नाउ ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर एक्सपीरियंस कि अभी वैसा कोई सिचुएशन फिट हो रहा है, इस क्वेश्चन में वैसा चीज होना चाहिए. एक रिलेशनशिप कि ब्रेक है, आई बिलीव कि उनकी गलती है, मेरी नहीं है. बट हाँ. सो मतलब मैं मानती हूँ कि नहीं है. जो दूसरे जो मतलब है रिलेशनशिप में जिनके साथ ब्रेक हुए हैं, बट दे नो बोथ ऑफ अस, दे आर सेइंग कि तुम अननेसेसरली हार्ड स्टैंड रहे हो, तेरी गलती नहीं थी, बात सही थी, पर ठीक है जाने दे. सो नाउ मेरा जाने देने का कैपेसिटी खत्म हो गया.
ओके। हाँ, सो यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, देखो अभी यहाँ पे आ रहा है ना, यू हैव हाँ नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, एग्जैक्टली सो दिस दिस हाँ सिचुएशन फिट्स इनटू दिस क्वेश्चन, अच्छा because now you want to move on, अभी जब हम होपोनोपोनो करेंगे, when we will do this होपोनोपोनो we will try to move out of this situation, कि अभी forgive forget खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके एक है मैम अभी तो दिख रही है हाँ Okay, so in this particular situation how can you take 100% responsibility, so that you remove that particular energy of emotional disturbance into this situation? जस्ट लेट दैट पर्सन गो कि भाई ठीक है उसको नहीं रिलेशनशिप रखना है भले ही कितना भी क्लोज हुआ हो कभी कभार कभी जाने दो हम्म, क्यों कैरी करते हो बट दैट इज अगेन पेनफुल बिकॉज आप निकल नहीं पाए हो ना वहां से, स्टिल लिंगरिंग अपॉन, हाँ वो आप पेन निकल नहीं पा रहे इसीलिए। तो दैट इज ब्लेमिंग वाले में ही आता है यस। ओके ठीक है Okay. Any memories and emotions as repeating data that keeps coming up about your past or present relationship with people or places or things. So one of the instances which you talk about just now can also be the part of this particular question.
काफी लंबा लिस्ट है मैम, एंड पेनफुल ऑल्सो। I can understand. ठीक है, इसमें ज्यादातर रिलेशनशिप्स या प्लेसेस या थिंग्स के साथ इतना नहीं है मेरा, इट्स मोर विद पीपल ओनली। Great. आई थिंक काफी लंबा हो गया, बट आई थिंक आई डन। Okay. 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 Now, this is the related question, and this would be the last question for today. How have the replaying data memory affected your perception of your energy centers? Where this replay has affected your body? Okay, it can be either pain or anything otherwise. परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है, मतलब एनर्जी चक्र का सेंटर का वो तो मैम रिलेशनशिप नहीं आइडिया होता है ऐसा तो। नहीं, एनर्जी सेंटर्स का मतलब है यहाँ पे वही मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा कि वेयर इन योर बॉडी हैव यू स्टोर्ड दिस इंफॉर्मेशन. Okay. How do you ID that? Have this caused you any kind of pain, or has this, after this incident your BP has arisen, or maybe you have encountered certain शुगर हो गया है, राइट, या फिर कहीं पे पेन आ वो गया तो मेरा है, या पहले फिर से कब कहीं से पे उठा के घूम ही रही हूँ। हेडेक हो गए. सो जस्ट थिंक कि ये सिचुएशन होने के बाद व्हाट इज दैट चेंज दैट हैज अफेक्टेड इन योर बॉडी. इट कैन बी इन द एनर्जी सेंटर्स, और इट कैन बी एनीवेयर इन योर बॉडी. ओके, सो कभी कभार ऐसा Okay, एक्चुअली so हार्ट में पेन हो जाता है, ऐसा फील होता है, इट्स नॉट कि हार्ट अटैक होता है, बट यू फील्स लाइक एक्चुअली ऐसे लगता है कि हाय, ऐसा हाँ, सो वो हैवीनेस हुआ ना, हार्ट में हेवीनेस हैवीनेस, हुआ। लाइक, हाँ राइट. सो इट हैज अफेक्टेड योर हार्ट चक्रा, यू कैन से इट हैज अफेक्टेड योर हार्ट चक्रा, जहाँ पे आपका हैवीनेस आ गया है. हाँ किसी किसी का होता है व्हेन दे बिकम वेरी एंग्री टू सर्टेन सिचुएशंस, और इवन इफ दे स्टार्ट रिप्लेइंग दैट इंसिडेंट इन देयर माइंड, देन उनका ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो जाता है. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन देयर लंग्स. इसीलिए उनका ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, राइट. सो वेयर डू यू फील कि आपके बॉडी में ऐसा कुछ स्टोर हुआ है? मैं भी मतलब यू फील दैट अगेन हेवीनेस देयर। हाँ, सो हैवीनेस, सो इट हैज इफेक्टेड मे बी योर अजना, योर हार्ट. सो ये सारे एनर्जी सेंटर्स को इफेक्ट ओके किया है. सो दैट इज व्हाई उस जगह पे बॉडी में पेन हो रहा है. इसीलिए मैंने नीचे में बॉडी लिखा है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द चक्रास, इसीलिए हाँ यू विल गेट कंफ्यूज्ड ऐसा, ओके। है ना. सो मैंने अभी बहुत नोटिस किया when we है। will do this meditation, when we will release this emotions, just be aware of these centers कि यहाँ से भी you are releasing things. बैक पेन भी हो जाता है कभी कभार। Okay, so lower in motions है वो नीचे मूव किया होगा स्पाइन से, इसीलिए बैक में accumulate एंड होता है. शोल्डर, हम्म. वो इनफैक्ट आपके मेडिटेशन के वक्त मुझे पता चला कि मेरा यहाँ से रिलीज हो रहा है पेन। आई डिडंट नो कि यहाँ पे हो रहा था, बट हमने राइट. मेडिटेशन किया उसके बाद वहां से रिलीज हुआ, देन आई रियलाइज कि वो अभी आई एम फीलिंग लाइटर हियर। आई वाज नॉट अवेयर कि आई वाज कैरिंग दैट पेन देयर। राइट, राइट. वो तो सबसे पहले वाला आपके साथ किया था ना, हाँ, हाँ, हाँ. तब आई नोटिस दैट यू ओके. मतलब एक्चुअली आई कुड फील कि वो इधर से रिलीज हुआ। राइट, राइट. तो मे बी तो बहुत देयर। बार ऐसा होता है कि हम लोग अननोइंगली बॉडी में ले लेते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज लाइक अ स्पॉन्ज बॉब. जो स्पॉन्ज बॉब है ना, हर किसी का एनर्जी एब्जॉर्व करते जाता है, उस तरह का है. सो until unless you start clearing your own energies, you will always feel heaviness. मेक सेंस।
and then effect धीरे धीरे करके it will also go into your physical body and start damaging your डायबिटीज आई थिंक physical आपने body. वो मेरे को कब से बोला हुआ है कि दैट इज Of course, बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, yes, yes, yes. काफी सालों से लेके Exactly, because it is associated with some of the other emotional energy. हाँ The वो moment पता भी नहीं you होता है get आपको aware, बेसिकली। the moment you get aware of that emotional energy, it will get released and your diabetes will be gone. Okay, great. So got a new awareness about you? थोड़ी बहुत Not. और पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी ब्लाइंड स्पॉट्स है। Okay. अवेयरनेस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स है कि भैया इसका तो आंसर ही नहीं पता चला। when we do this kind of journals, तो फिर we actually understand कि कहाँ पे हमें क्या चीज में वर्क करना है अपने लाइफ, right? Okay. So let's start. So there will be 3 aspects to it. We will do the Ho'oponopono, kind of a meditation. I think I should play some certain music. I don't know whether हम you एक बार बंद करके रीस्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो वो एडिट फिर आप शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ अच्छा before we start, have you got your login and password मिल गया ना? वो चेक करना है, आपने बोला था आई हैव टू चेक, अच्छा, ओके. मैंने नहीं किया है। मैं अभी कल ही आई और कल मतलब छुट्टी से आई ना, तो इतना सारा काम था हमें, तो कॉलेज में वाइवा भी दे कराना था, मेरा खुद का एग्जाम है ट्यूसडे को, वो भी मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो सारा उसी में लगी हुई थी, कुछ भी नहीं ओके ओके ओके. मेरा पीएचडी का आरएससी है ट्यूसडे को, तो वो अच्छा, भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो एक यू हैव टू सबमिट वंस टू देम, देन दे विल कम एंड देन ओके. यू हैव टू डू, तो सबमिशंस का पूरा चक्कर चल रहा है। अच्छा अच्छा. मैंने वहां पे तो एग्जाम दी ना, तो मैंने ऐसे बोला कि मैं आके बैठ रही हूँ, मैं एग्जाम ले लूंगी, मेरे को टेंशन नहीं है। एग्जाम के लिए तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, वाई वाई थी। ओह. उन्होंने दूसरों को इतना सारा भेजा था रीड करने के लिए, मैं कहा यार एग्जाम लेने के लिए भी तुम इतना रीड करवाओ कि नहीं करना। टाइम ही नहीं था मेरे पास कुछ भी, तो वहां पे तो ऐसे ही